Now we discuss the next variety of question. Suppose 2 points charges plus 9e and e are placed at a distance of 16 centimeter from each other. The question is what? 2 point charges plus 9e and plus e are separated from each other by a separation of 16 centimeter. Now at what point between these charges should a third charge q be placed so that it remain in equilibrium? Question is what? आपको तीसरा चार्ज q इन दोनों के बीच में कहां प्लेस करना है कि so that the whole system is in equilibrium. Now system is to be in equilibrium. What is the condition? That net force experienced by the system is zero. आप मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होता है? जब उस पर नेट फोर्सेस जो लग रहे हो वो क्या हो? जीरो होने चाहिए. सो लेट्स सपोज कि ये पॉइंट हमने ले लिया O which is at a distance x from the charge which is placed at a point A, and it is a distance 16 minus x from the charge which is placed at point B. क्योंकि टोटल डिस्टेंस 16 है तो हमने क्या बोल दिया कि ये जो q चार्ज है वो 9e चार्ज से x डिस्टेंस पर है और प्लस e चार्ज से 16 माइनस x डिस्टेंस पर है. अब आपको क्वेश्चन सिचुएशन क्या दिया है कि दैट चार्ज इज टू बी और सिस्टम इज टू बी इन इक्विलिब्रियम. तो क्या होगा? दैट नेट फोर्स ऑन O इज इक्वल्स टू जीरो. कि इस q पर जो नेट फोर्स हो लगना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए. तो व्हाट वी हैव कैलकुलेट force on O due to A plus force on O due to B, their vector summation is equals to 0. ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि इन दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शंस क्या है. सो द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय O due to A is away from the charge. क्या होगा? दोनों पॉजिटिव है तो फोर्स experienced by O due to A is away from the charge, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. Now similarly force on O due to B is away from the charge, क्योंकि B जो चार्ज है, B पर जो चार्ज प्लेस्ड है और O पर जो चार्ज प्लेस्ड है वो भी दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. तो अब देखिए इन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो क्या आ गई है? Opposite. If we compare their magnitude or equate their magnitude, then these forces are or net force experienced by the system is zero. देखिए ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इनके मैग्नीट्यूड को इक्वेट कर लें तो क्या हो जाएगा? FOA is equals to FOB. यदि मैग्नीट्यूड इक्वेट कर लें तो डायरेक्शन अपोजिट है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? सिस्टम पर जीरो हो जाएगा. So the force experienced by the charge placed at O due to A is K. Q की जगह अपने K, Q1 की जगह Q प्लेस कर दिया, Q2 की जगह 9E divided by x square is equals to K into Q1 is Q, second charge is E divided by 16 minus x का whole square. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो K Q1 Q2 by R square, तो K Q into 9E divided by x square K into Q into E, क्योंकि B पर जो चार्ज है वो E है, डिवाइड बाय 16 माइनस x का होल स्क्वायर. तो अब ये Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, E से E कैंसिल, सो इट विल बी 9 by x square is equals to 1 upon 16 minus x का होल स्क्वायर. Now taking square root both side, so what will happen? 3 by x is equals to 1 upon 16 minus x. ठीक है, तो ये हो जाएगा 48 minus 3x is equals to x. So क्या हुआ यहाँ डिस्टेंस? ये हो गया 4x is equals to 48. x की वैल्यू 48 divided by 4, it is 12 centimeter. So this plus q charge is placed at a separation of 12 centimeter from the 9e charge and 4 centimeter from plus e charge. Is it clear?
Clear? Next, we are doing a question related to again the principle of superposition. Question is what? A charge small q is placed at a center of a line joining the two equal charges plus q. क्या बोला है? एक चार्ज है small q which is placed at the center of the line joining the two equal charges of magnitude capital Q. Show that the system of these three charges will be in equilibrium if small q is equals to minus q by 4. Small q is equals to minus q by 4. अब क्वेश्चन क्या है देखिए, आपको क्या बोला है कि दो चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, कैपिटल Q and the third charge is placed at the midpoint of these two charges या midpoint of the line joining these two charges. ठीक है, अब इन दोनों के बीच का यदि ये सेपरेशन मैं क्या ले लूं, फॉर एग्जांपल x ले लूं. सपोज these two positive q charges plus q capital Q charges is separated by a distance x. तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x by 2. अब आपको क्या बोला है कि the whole system is in equilibrium, means net force experienced by the system is 0 if small q is equals to minus q by 4. One second. Question is hello. हाँ, सुनाई दे रहा है? नाउ क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं. दो चार्जेस हैं प्लस q मैग्नीट्यूड के which are at a separation of x. Now we are taking a third charge small q magnitude are placed at the midpoint of the line joining these two charges. आपको क्या बोला है कि show that this magnitude of this small q is minus q by 4 if the whole system of these three charges will be in equilibrium. मतलब इस सिस्टम पर नेट चार्ज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. तो अब देखिए, अब वो पूरा लास्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमने मैकेनिज्म यूज किया था वो मैकेनिज्म यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल. इस पर नेट फोर्स हम चेक करेंगे तो इस पर इसका फोर्स, इस पर इसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा? इक्वल और अपोजिट. तो स्मॉल q की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी. सो नाउ व्हाट टेक्निक वी हैव यूज्ड? नाउ वी हैव कैलकुलेट द फोर्स, नेट फोर्स ऑन द चार्ज व्हिच इज प्लेस्ड एट a point A or a point B, and that charge, that force is equal to 0. First we calculate the net force experienced by the charge placed at a point A and that force that we have taken 0. क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी चार्ज पर बाकी चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इक्वल क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0. तो we have calculated the net force on A due to the charge placed at a point B and the charge placed at a point O. The force experienced by A due to B plus force experienced by A due to O is equals to 0. तो अब देखिए, फोर्स एक्सपीरियंस बाय A ड्यू टू B, मैग्नीट्यूड क्या होगा? A कैपिटल Q into capital Q by x square, and force experienced by A due to O, charge placed at O, that is K capital Q small q upon x by 2 का होल स्क्वायर. अब देखिए, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया. अब हम डायरेक्शन चेक करें कि हमें इनका वेक्टर एडिशन करना है. क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है तो आपको डायरेक्शन भी कंपलसरी पता होनी चाहिए कि हमें ऐड करना है बेसिकली या सब्ट्रैक्ट करना है. तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय A ड्यू टू B, ये और ये पॉजिटिव चार्जेस से रिपेल कर रहे हैं तो ये फोर्स ऑन A ड्यू टू B. नाउ ये और ये भी पॉजिटिव है तो फोर्स ऑन A
ड्यू टू ओ, वो भी उसी डायरेक्शन में है, तो नेट दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, एड ऑन हो जाएंगे। तो क्या हो गया, के कैपिटल क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो फोर्स कितना आया देखिए, एंड दैट वी हैव टेकन इक्वल्स टू 0 क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ये हो गया के कैपिटल के कॉमन ले लिया, क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय एक्स स्क्वायर। क्योंकि 4 क्यों लिया, क्योंकि ये x बाय 2 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 4, और इसको इक्वेट कर लिया 0 के साथ। इसके साथ तो थोड़ा सा क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय इंटू 4 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन आ गया, के बाय एक्स स्क्वायर, और क्यू भी कॉमन ले लिया, एंड दैट इज क्यू प्लस 4q इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए के जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्यू भी 0 नहीं होगा क्योंकि चार्ज है, पोजीशन भी नॉन जीरो है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्लेस्ड है, तो 0 क्या होगा, q प्लस 4q इज इक्वल्स टू 0। so q is equals to minus 4q, so small q is equals to minus q by 4q. So this charge is negative in polarity and its magnitude is 1 by 4 times of the charge placed at a point A or point B. So that is basically applications of principle of superposition. कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर प्रेजेंट चार्ज का नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, तो उस फोर्स को, नेट फोर्स को इक्वल टू 0 कर देंगे, और बाय दैट टेक्निक वी हैव कैलकुलेट द नेट force experienced by the system of multiple charges. Is that clear? समझ में आया? हेलो, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? Now we discuss the next topic of this unit is electric field and electric field intensity. What is electric field and what is electric field intensity? So what is an electric field? It is a space around the charged particle, the space or field around the charged particle due to which other charged particles placed nearby to it experiences the force of attraction or repulsion. देखिए, as we discussed in the Coulomb's law of electrostatic, जैसा हमने डिस्कस किया है कि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनसिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है या रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, द मेन मैकेनिज्म और मेन रीजन बिहाइंड दैट इज दैट ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट अ फील्ड अराउंड इट, एंड ड्यू टू दैट फील्ड whenever the another charge particle come into the field of the charge particle, then it will experience a force of attraction or repulsion. So how can we define the electric field? Electric field is a space around the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge. How can we define? It is a space around the charged particle due to which another charges experiences force of attraction or repulsion due to charge.
So that field, that space is called electric field. Now the magnitude of electric field is represented by electric field intensity. इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. Electric field intensity at any point is basically what? Strength of electric field at that point, and which is equals to the force, electric force experienced by unit positive charge placed at that point. क्या है? Electric field intensity at any point due to electric charge is equal to electric force per unit test charge, electric force per unit test charge experienced at that point. It is equals to electric force per unit test charge experienced at that point. जैसे फॉर एग्जांपल कि एक चार्ज है स्मॉल क्यू मैग्नीट्यूड का, एक पॉइंट चार्ज हमने लिया स्मॉल क्यू मैग्नीट्यूड का, एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फील्ड। एक्सप्रेशन क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज, हमने इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोला? क्योंकि दिस चार्ज इज बेसिकली यूज्ड टू टेस्ट द फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर फील्ड को टेस्ट करना है कि वह उस पॉइंट पर फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके लिए इस चार्ज को हमने यूज किया, इसलिए इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। तो हमें बेसिकली कैसे कैलकुलेट करना है इसका एक्सप्रेशन? जैसे वी आर टेकिंग अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हिच इज क्रिएट अ फील्ड अराउंड इट। नाउ this field is exists at a point P or not. We are taking we are placed a test charge Q naught at point P. हमने बेसिकली क्या करना है? एक पॉइंट चार्ज Q है, वो अपने अराउंड कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है, उस फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, which is known as electric field intensity ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अब ये अपने सराउंडिंग कितना फील्ड क्रिएट कर रहा है वो चेक करना है। तो हमने क्या किया? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड अ फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P व्हिच इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम, या व्हिच इज एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट Q। तो टू फाइंड अ फील्ड इंटेंसिटी वी आर टेकिंग अ टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज हमने लिया Q naught व्हिच इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट P। इफ field intensities exist at that point P, then this test charge experience a force of repulsion due to this charge। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ फील्ड होगा तो ये चार्ज इसकी वजह से रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा। तो सपोज क्या कि यहाँ फील्ड है, so this Q naught charge experience a force of repulsion. This force of repulsion will be is in a direction given in the diagram. इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। सो द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज कितना हुआ? टेस्ट चार्ज Q naught, दैट इज F is equals to K Q naught by R square। अब हमने एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या लिया? E is equals to F by Q naught फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये क्या हो गया? F by Q naught। तो ये हो गया Q naught by R square डिवाइड बाय Q naught। Q naught से Q naught कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या आया? ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ by R square। क्या आया? KQ by R square। K की वैल्यू प्लेस करें 1/4 pi epsilon naught Q by R square। So that is the expression of electric field intensity due to point charge KQ by R square।
if we write is this in the vector form, so it is 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square r cap. So that is the expression of electric field intensity in the vector form. So that is the expression of electric field intensity due to point charge k q by r square. और इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोले हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट, इट इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम. ठीक है. आगे एक और यूनिट आप पढ़ेंगे, वोल्ट पर मीटर, बट ये लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि वोल्ट पर मीटर कैसे है. आगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे तो यहाँ रिलेट ये वाली यूनिट भी आएगी. बट अभी के लिए आपको ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताना है, न्यूटन पर कूलम. और व्हाट विल बी इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए न्यूटन फोर्स है, न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m1 l1 t-2 और कूलम का होता है a1 t1. ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m1 l1 t-3 a-1. सो दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, m1 l1 t-3 a-. सो दैट इज अ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. So what we have discussed here, electric field intensity and electric field intensity due to point charge. Electric field is a space around the charged particle due to which another charged particle experiences a force of attraction or repulsion. Magnitude of electric field is electric field intensity, that is force per unit test charge. And electric field intensity due to, by using this actual definition of electric field, we have calculated the expression of electric field intensity due to point charge is kq by r square. क्या होगा, kq by r square. That is the expression of electric field intensity due to point charge. वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेशन हो गया 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square r cap. अभी किस तरीके की क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी लाइक द इलेक्ट्रिक फोर्स. ये भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी. So vector quantity है, so it must be follow the principle of superposition. ये भी क्या करेगी, principle of superposition, ये भी physical quantity क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरीके से या इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह ही क्या करेगी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करेगी, फॉलो करेगी. So our next article is electric field intensity due to system of charges. मतलब आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मल्टीपल चार्जेस है, तो उन मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा वो कैलकुलेट करना है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस. सो our next article is electric field intensity due to system of charges. Now to calculate the electric field intensity due to the system of charges, what is the situation? ठीक है, एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर मल्टीपल चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3 and Qn. And they have their own position vector r1, r2, r3, rn. Now we are interested electric field intensity at a point P whose position vector is r0 with respect to the origin. We are interested to find out the field intensity at point P due to all these charges. इन सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो कैलकुलेट करनी है. सो ईच एंड एवरी चार्ज पार्टिकल क्रिएट अ फील्ड अराउंड इट. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉइंट चार्ज दैट वी हैव डिस्कस्ड इज kq by r square. तो
इन सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर कितना फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमें कैलकुलेट करना है. So that is the electric field intensity due to the multiple charges. So we are using again the principle of superposition. So principle of superposition के हिसाब से क्या हो जाएगा, electric field intensity at point P is equals to vector sum of electric field intensity at point P U21 plus electric field intensity at point P due to 2, electric field intensity at point P due to 3, and so on, electric field intensity at point P due to n. What we are doing here, first we calculate the electric field intensity of individual charges at point P and then added these all the electric field intensity vectorly. इन सारी फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या करेंगे, वेक्टरली ऐड करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू 1 क्या होगा, k3/r² होता है, बट यहाँ पोजीशन वेक्टर अलग है तो पोजीशन वेक्टर उस हिसाब से रहेगा kq1 अपॉन, अब ये q1 चार्ज है, ये फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर, तो हो जाएगा r0 माइनस r1 मॉडुलस का स्क्वायर r1 नॉट कैप. ये फाइनल पोजीशन वेक्टर क्योंकि इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है इस चार्ज की वजह से, तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा फाइनल, तो r0 माइनस r1 मॉडुलस का स्क्वायर, ये r² हो गया, r1 नॉट कैप. यदि वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो EP2 क्या हो जाएगा, kq2 अपॉन r0 माइनस r2 वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर r2 नॉट कैप. सिमिलरली EPN क्या हो जाएगा, kqn अपॉन r0 माइनस rn वेक्टर का मॉडुलस होल स्क्वायर rn नॉट कैप. अब ये सारी वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम प्लेस करते हैं तो EP क्या हो जाएगा, देखिए k कॉमन आ रहा है तो मैं 1/4πε0 कॉमन ले लिया, q0 ठीक है, इसको लिख दिया r10 वेक्टर का स्क्वायर r10 कैप, q2 अपॉन r20 वेक्टर का स्क्वायर r20 कैप, ये यूनिट वेक्टर है. सिमिलरली qn rn0 वेक्टर का स्क्वायर rn0 कैप. तो समेशन का साइन लगाएंगे तो समेशन क्या आ जाएगा, देखिए EP is equals to 1/4πε0 summation of qi अपॉन r i0 वेक्टर का स्क्वायर r i0 कैप. ये आपका फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा सिस्टम ऑफ चार्जेस की. सिंपली क्या करना है, लॉजिक इज व्हाट, to find a field intensity at any point in a field due to the multiple charges, you just find out first the field intensity due to the individual charges at that point and then added all the field intensity vectorly. उनका सारी field intensity का क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है. क्या करना है, वेक्टर एडिशन करना है. Is that clear? Now to understand this more clearly, we are taking an example. न्यूमेरिकल एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है. क्वेश्चन इज व्हाट, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड -q एंड +q. -q जो है दैट इज 10 to the power -8 और यह +q + 10 to the power 8 coulomb are placed at a vertices of a equilateral triangle of side 10 cm. इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 cm. ठीक है. Now calculate the field intensity due to these system of two charges at point A, at point B and at point C. Now point A is a
सेपरेशन ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, पॉइंट ए मिड पॉइंट है इस साइड का, ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपका 10 सेंटीमीटर ऑलरेडी है, बिकॉज दिस इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो आपको क्वेश्चन क्या बोला है कि इन दोनों चार्जेस की वजह से, एक चार्जेस है माइनस क्यू, एक है प्लस क्यू, इन दोनों चार्जेस की वजह से आपको पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर क्या कैलकुलेट करना है, नेट फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पॉइंट ए पर कैलकुलेट करने के लिए अब लेबल कर लेते हैं हम पॉइंट्स को, या जहां चार्जेस प्लेस किए हैं उनको लेबल कर लेते हैं। जैसे ये पॉइंट ले लिया हमने एम और ये पॉइंट ले लिया फॉर एग्जांपल एन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए is equals to vector summation of electric field intensity at point A due to m plus electric field intensity at point A due to n। इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड होगा उसका क्या हो जाएगा, वेक्टर एडिशन। अब हमने एक पॉइंट बोला कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी वो नहीं बताई हमने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड due to positive charges is always away from the charge. Electric field due to the positive charge is always away from the charge, and due to the negative charge is always towards the charge. मेमोरी फुल हो गई। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिएगा, ये कॉल बंद हो जाए तो 5-10 मिनट के लिए वापस आइएगा, ठीक है ना। कॉल, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तब ये सेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तब तक यदि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है तो 5-7 मिनट के लिए वापस ज्वाइन हो जाइएगा। तो मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है इसकी और इसकी वजह से। तो क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसा मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, जैसे आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, और नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। तो अब देखिए मुझे डायरेक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है तो डायरेक्शन का रूल मस्ट है। तो इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू एम, ये इस तरफ हो गया, और ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू एन। तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू एम भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू एन वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज है, दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो पहले हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें और उन मैग्नीट्यूड को सिंपली ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीट्यूड ले लिया, सॉरी डायरेक्शन ले ली, अब चार्ज की पोलैरिटी नहीं लेंगे। अब ये माइनस क्यू, यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस क्यू आएगा, क्योंकि आपने डायरेक्शन ले ली। एक बार डायरेक्शन ले ली फिर आपको मैग्नीट्यूड ही लेना है, फिर नेगेटिव साइन नहीं लेना है, ये आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने नेगेटिव चार्ज की वजह से बोल दिया है कि फील्ड इज टुवर्ड्स द चार्ज, तो हमने डायरेक्शन कंसीडर कर लिया है। तो अब सिंपली मैग्नीट्यूड ही लेंगे, तो k क्यू बाय r स्क्वायर, तो k की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, चार्ज है 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय r 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 10⁻⁻2, तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 9 × 10 × 100, क्योंकि ऊपर आएगा तो 100 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 2, सो दैट इज 80 × 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक कौन सा वाला, देखिए हमने डायरेक्शन के लिए क्या बोला है कि ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज फील्ड इंटेंसिटी इज टुवर्ड्स द चार्ज। इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट पर फील्ड कैलकुलेट करना है, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड किस तरफ होगा, चार्ज की तरफ। इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है ये चार्ज की वजह से, तो टू अवे फ्रॉम द चार्ज, तो अवे फ्रॉम द चार्ज, दोनों वेक्टर ऐड हो गए। पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगा, तो दोनों ऐड हो गए।
Is that clear? अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू एन के क्यू बाय आर स्क्वायर, ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9, मैग्नीट्यूड इसका 10 टू पावर -8, सॉरी -8 है, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो है प्लस 10 टू पावर -8 है, ठीक है, डिवाइड बाय 5 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है। और एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ कर दिया, स्क्वायर था हमने नहीं किया, वापस से ये वाला पार्ट गड़बड़ हो गया है। 9 इंटू 10 इंटू ये हो गया 10 टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 25, के क्यू बाय आर स्क्वायर था, हमने आर ही किया है, तो देखिए ये 10 टू पावर 4 था तो इसको 100 लिखा और एक और 100 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 4, तो हो गया 36 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम, और यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 36 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए क्या आएगा, 36 इंटू 10 टू पावर 3 प्लस 36 इंटू 10 टू पावर 3, इट विल बी 72 इंटू 10 टू पावर 3, और अलोंग A to M, along A to M। तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? अब मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा देखिए। Now electric field intensity at point B is electric field intensity at point B due to M plus electric field intensity at point B due to N, और इन दोनों फील्ड इंटेंसिटी का क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन करूंगा। क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन करने के लिए इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इनका अलाइनमेंट पता होना चाहिए, तो कैसे करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज है तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू एम, और इसकी वजह से इस पर अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू एम, और ये एंगल कितना हो जाएगा 120, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट वी कैलकुलेट देयर मैग्नीट्यूड, first we calculate their magnitude and then find their vector addition, then find their vector addition। ठीक है, तो अब दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट B ड्यू टू M K Q बाय R स्क्वायर, तो K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, Q की वैल्यू 10 टू पावर -8 डिवाइडेड बाय R 10 इंटू 10 टू पावर -2 का स्क्वायर, क्योंकि सेपरेशन कितना है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड कितना हुआ 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाय ये हो गया 10 टू पावर -1 का स्क्वायर 10 टू पावर -2, ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी ड्यू टू एन, ये भी हो जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड वही है 9 इंटू 10 टू पावर 9, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड है 10 टू पावर -8
और ये 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो दोनों फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड सेम आए, तो इसको भी E ले लिया और इसको भी E ले लिया। अब नेट फील्ड कैलकुलेट करना है। EB इज इक्वल टू E स्क्वायर प्लस 2E² cos 120, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 2E² प्लस 2E² cos 120 की वैल्यू -1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2E² माइनस E², ये हो गया √E², तो ये हो गया E, और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू है EB इज 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। Is that clear? Electric field intensity at point B. Now we calculate electric field intensity at point C. So EC is equals to ECM plus ECN. ठीक है, तो अब वो कैलकुलेट करने के लिए हम पहले डायरेक्शन कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट सी देखिए, पॉइंट सी मैं वापस से क्लियर आउट कर रहा हूं, ये पॉइंट सी, ये जो पॉइंट सी है वो प्लस क्यू चार्ज से 5 सेंटीमीटर पर है और माइनस क्यू चार्ज से 15 सेंटीमीटर पर। तो अब देखिए डायरेक्शन का रोल मैं वापस से बता रहा हूं कि ये प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो ये हुआ ECM की डायरेक्शन, that is the direction of electric field at point C due to M. ECM है, ECN, so पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज। तो ये हो गया ECM। वापस से डायरेक्शन एक बार देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो ECN, और इस माइनस क्यू चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज, तो ये हो जाएगा ECM। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, 180 का अलाइनमेंट है, जो मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा होगा उसमें से छोटी वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप पहले कैलकुलेट करते हैं ECM, KQ/R², K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 10⁻⁻8 और R की वैल्यू, अभी जो R है माइनस Q की पॉइंट C से डिस्टेंस कितनी है, 5 और 5 10 और 5 15, तो 15 सेंटीमीटर, यानी 15 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो ये हो गई 9 इंटू 10 डिवाइड बाय 225 इंटू 10⁴, ये 100, ये 100, ये कैंसिल किया, 25 9 सा 225 और ये 4, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, सो इट विल बी 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब ECN, ये हो गया KQ/R²। अब R प्लस क्यू चार्ज की C से डिस्टेंस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो फील्ड ज्यादा होगा, बड़ा होगा मैग्नीट्यूड वाइज, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁸ डिवाइड बाय R की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 इंटू 100, ये हो गया 4, ये हो गया 36 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट C क्या हो जाएगा, EC इज इक्वल्स टू ECN माइनस ECM। ये मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है, ये मैग्नीट्यूड वाइज छोटा है, सबट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि 180 का अलाइनमेंट है, तो हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 10⁻³, तो हो जाएगा 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सो ये आपका कैलकुलेट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। वेक्टर एडिशन करना है, ठीक है, पहले इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड निकालना है, देन कैलकुलेट द देयर वेक्टर एडिशन।